प्लीज सारे अपना फोन अनम्यूट म्यूट करो। शलोम, कैसे हो सब लोग? शलोम रब्बी जी हम ठीक हैं। शलोम शबात शलोम। आज शबात। रब्बी जी हम सब ठीक हैं। टुडे इज अ शबात। आज शब्द है Because today is a very special day. Does anyone know what day it is today? आज एक बहुत ही खास दिन है। क्या आप में से कोई जानता है कि ये खास दिन किसके लिए है? Today is a festival called Shavuot. आज एक त्योहार है जिसे हम कहते हैं कि शावोत। Shavuot in the Christian world we call it Pentecost, but today is Shavuot. हमारे मसीह के लोग इसे कहते हैं पेंटिकॉस्ट, और लेकिन इब्रानी में से कहते हैं शवोत। And why Shavuot? Because the word Shava means weeks in Hebrew. तो शवात का अर्थ है कि हफ्ते। So we have to calculate 7 weeks, which is 49 days, and this festival comes on the 50th day from counting. तो हमें हिसाब करना है, आंकड़े लगाना है कि 7 हफ्ते के बाद 39 दिन के बाद में 50वें दिन को ये जुलूस निकाला जाता है। And this 50th day is Shavuot, also called Pentecost in Christians. तो ये 50वां दिन को शवोत और मसीह के लोग इसे पेंटिकोस्ट कहते हैं। The Christian world, I think, is celebrating Pentecost next Sunday. वो जो मसीह के लोग हैं वो आने वाले इतवार को शवोत का त्योहार मनाते हैं। But as per the biblical calendar, it is starting from today evening till tomorrow evening. लेकिन बाइबल के अनुसार इसकी शुरुआत आज होती है। Remember that the day, biblical day starts from evening to the next evening. Yes, evening to Evening, from sundown to sundown. तो बाइबल के अनुसार जो दिन की शुरुआत होती है वो शाम से शाम को होती है। It is not morning to evening; it is evening to the next evening. So today is actually the 50th day according to the biblical calendar. तो सवेरे से शाम तक नहीं होती जैसे दुनिया के लोग हिसाब लगाते हैं, उम्मत लोग, पर ये शाम से शाम होती है और आज उसकी शुरुआत है, ये 50वां दिन। Okay, everybody, please turn with me to the book of Leviticus, chapter 23. Just a minute. Yeah. The book of Leviticus, chapter 23. What is Leviticus? Chapter 23. अहबार की किताब 23वां बाब। You read? And we will read from verses 1 and 2. I'll read it in the Hebrew first, so then you can read it in the Urdu. It says, Vaidaber Adonai el Moshe le'amor, Daber el Bnei Israel ve'amarta elehem mo'edei Adonai asher tikrahu otam mikrai kodesh elehem mo'adi. The Lord spoke to Moses, saying, Speak to the children of Israel and say to them, These are the fixed times, these are the appointed times and the fixed times of the Lord, which you shall proclaim as sacred occasions. तो खुदा ने मूसा को हिदायत दी कि ये खुदा के चुने हुए दिन हैं जो कि पाक दिन हैं, और तो इज़राइल को हिदायत देगा कि इस दिनों के अनुसार उन्हें अपने त्योहार मनाना चाहिए, और ये पाक दिन हो गए। So these are very specific days on the Hebrew calendar that God had given the children of Israel to keep as festivals. तो खुदा के कैलेंडर के अनुसार ये उनके खास चुने हुए दिन थे जो त्योहार के रूप में यहूदियों को मनाना चाहिए था। So
the first of these days is the 14th of the first month, where they slaughter the Passover lamb. तो पहले जो दिन था वो पहले महीने के 14वें दिन था जब उस कुर्बानी के मेमने को वो बलि चढ़ाते थे। The 15th was the day of where they would sit on that evening and eat the Passover lamb. तो 15वें दिन को वो एक साथ इकट्ठा बैठते थे और जो मेमना जो फसह का पर्व का जो मेमना है उसे एक साथ मिलकर खाते थे इकट्ठा कर। And that first day was a Shabbat. और उसका पहला दिन था शब का दिन था। On the 16th day of the first day, they would bring in the barley leaves as a first fruit offering to the temple before the Lord. तो पहले महीने के जो 16वें दिन थे तो उसके वो बार्ली के जो पत्ते हैं वो लाते थे और खुदा की खिदमत में पेश करते थे। Because barley is a grain that's eaten by the animals, not mostly by the humans. Very few humans eat barley. बाली ना, Barley. तो जो बाली जो जौ के जो पत्ते हैं वो No, ज्यादा- wheat is different. Barley is different. जौ What जौ do जौ Okay, Joe is barley. या वीट इज गेहूं Okay. या तो जो जौ के जो पत्ते हैं वो ज्यादा करके जानवर खाया करते थे। And from that day, they had to count 49 days every day till this feast of Shavuot, which is today. और उस दिन से लेकर उन्हें 49 दिन गिनने पड़ते थे और शाऊत के दिन में आना पड़ता था जो कि आज का दिन है वो। So this becomes very parallel to the New Testament, where Yeshua was crucified on the 14th day, and on the 50th day from his resurrection, it was the outpouring of the Holy Spirit of Pentecost in the upper room. तो नए नियम के अनुसार बिल्कुल मुआवतिक चल रहा है क्योंकि यीशुआ को 14वें दिन को उन्हें बलि चढ़ाया था और 50वें दिन को वो फिर से जी उठे और जिसे अंग्रेजी में पेंटिकोस्ट कहा गया है। Now in chapter 23, read verses 15, 16 and 17. और 23 में हम 15-16 कलाम पढ़ेंगे, 15-16-17। उर्दू में पढ़िए please. और तुम सब्बत के दूसरे दिन से जिस दिन हलाने की कुर्बानी के लिए पूला लाओगे गिनना शुरू करना जब तक 7 सब्बत पूरे ना हो जाएं, और 7वें सब्बत के दूसरे दिन तक 50 दिन गिन लेना। तब तुम खुदावन के लिए नजर की नई कुर्बानी गुजारना। 17. तुम अपने घरों में से इफा के 2/2 हिस्सा के वजन के मैदा के 2 गिरदे हिलाने की कुर्बानी के लिए लाना। वो खमीर के साथ पकाए जाएं ताकि खुदावन के लिए पहले फल ठहरें। Okay. So on Pesach or Passover, they were supposed to eat bread without leaven, unleavened bread. तो फसह के पर्व में जो रोटी खाएंगे उसमें खमीर नहीं चाहिए थी, ऐसी रोटी खाने को हिदायत दी गई थी। And 7 days they were supposed to eat only food that does not have any raising agent with it. और 7वें दिन तक बिना कोई खमीर के ऐसे उन्हें चीजें खाने को हिदायत दी गई थी। And then they had to count 50 days, and on the 50th day they would offer new bread which is raised with yeast. Which is raised? With yeast, raised bread. और 50वें दिन को उन्हें ऐसी रोटी खानी पड़ती थी जिसके अंदर खमीर था। Why is the difference between the two? तो इन दोनों में ऐसा फर्क क्यों है? So now we must understand that the barley harvest, which was given on the 16th day of the month, represents the food that is given to animals, and that is the animal ewe that you're offering to God. तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि 16वें दिन को तो जौ की फसल दी गई थी, तो जो आप खुदा को जो जानवर की कुर्बानी देते हो ये उसका मुकर्रर था।
So you're presenting to God the animal you, because that is represented by the body. तो आप खुदा को जो जानवर है आपका, वो उसको आप खुदा को दे रहे हैं, तो उसकी ओर से, आपकी ओर से वो आता है जो जानवर का हिस्सा. Whereas on the 50th day, you're offering bread that is leavened, but with the wheat harvest. लेकिन 50वें दिन को आप और रोटी खुदा के सामने कुर्बानी में भेंट करते हो, जो कि उस गेहूं की रोटी जो हमें उन्मत्त को खाने के लिए कहा गया था. So the bread, the wheat harvest represents the human being, not the animal. जो गेहूं की फसल जो खुदा के सामने कुर्बानी में दी गई थी, उसे इंसानी की ओर से दिया गया था, परंतु जानवर की ओर से नहीं. Now, the reason why God is using unleavened bread and leavened bread is because these are the different states of the human soul. तो खुदावन ये खमीर वाली रोटी और अखमीर की रोटी जो हमें बताता है, इसके हमें ये तालीम देता है कि इंसान और जानवर के बीच में जो भेदभाव है, इंसान के दो पहलू दिखाता है. A grain of wheat has to be dried in the sun, and it has to be crushed into powder and into wheat and into a flour. जो गेहूं को पहले सुखाना चाहता है धूप के नीचे, फिर बाद में उसे तोड़ा जाता है और बाद में उसकी रोटी बनाई जाती है. The moisture, the water that's inside that seed that has the potential to grow again, that seed is killed by removing the water and by crushing it and killing it into powder, into flour. तो गेहूं के अंदर जो पानी होता है, वो पानी में जो ताकत होती है कि उसे बीज को और पैदा करने के लिए उसे सुखा के मार दिया जाता है और फिर उसका पाउडर बना के खिलाया जाता है. This represents the state of a human being, a state of the soul that is crushed and broken in the sight of God. तो ये जो इंसानी जो हमारी जो रूह है, उसको किसे तोड़कर उसके अंदर फिर से नया खुदा की जो उजाला आता है, उसे दर्शाया जाता है. And now the flour is taken and given as an offering on the altar. और अब उस आटे को जो सुखाया गया, उसे तोड़ा गया और उसे मरोड़ा गया और अब उसे कुर्बानी के रूप में खुदा के सामने चढ़ाया जाता है. Then that flour, water is being added, and life is brought back into that flour again. पर अब उस आटे में अब पानी मिलाकर उसे गोंद किया जाता है और उसके अंदर अब फिर से जान आ जाती है. And that water represents anointing, Holy Spirit anointing. और जो हम जो आटे को पानी को आटे में मिलाते हैं, उसे रूह कुदस की का मुकर्रर है वो. And now that flour is made into bread, but it's unleavened bread, without all the impurities of this world, because it has been crushed from the impurities of the world. और अब उस जो रोटी है, उसे अब उस आटे को जो रोटी में बनाया जाता है, पर उसमें अभी कोई खमीर नहीं, क्योंकि उसे तोड़ा गया और फिर से पीट कर फिर से नया बनाया गया. And that bread which is baked, flat bread, is also offered on the altar for certain sacrifices. और जो चपटा रोटी है जिसे तोड़कर बनाया गया, इसे कुछ ऐसे कुर्बानी के लिए खुदा के सामने भेंट चढ़ाई जाती है. It represents the human soul that has gone through the process of refinement, and God has broken that soul for the purpose of coming close to Him. ये इंसानी रूह को दर्शाती है जिसे तोड़ा गया, मरोड़ा गया और उस खुदा के रास्ते में उसे एक नए तरीके से पेश किया गया है. And then that bread sometimes is being baked with oil that represents Holy Spirit anointing. और उस कभी-कभी रोटी के साथ में उसे तेल डालकर उसे पकाया जाता है. ये दर्शाता है कि रूह उल खुदुश का उसके ऊपर अब ज्योति और प्रकाश उजाला आया है. And sometimes that bread is also dipped and is fried in a pan of oil, dripping with oil that represents tremendous grace and anointing from God.
on that तो soul. कभी कभी रोटी को तेल के जो तवे के ऊपर उसे भिगाया जाता है और डुबाया जाता है, ये दिखाने के लिए अब खुदा की जो जलाल, जो नूर उस रूहुल कुद्दुस की बड़े पैमाने पर आ गई है। So to make you all understand, the Passover lamb on the 14th of the month is not a sin offering. It is an offering which is given for the people to remove all the leaven out of our lives, all the impurities out of our life. तो 14वें दिन में जो खुदा को जो भेंट चढ़ा जिसे रोटी का, वो पाप की बलि नहीं है, परंतु जो हमारे अंदर जो गंदगियां हैं उसे साफ करने का एक मुकर्रर तरीका है। Then you have to continue the process of being without impurities by your soul going through this process of being broken, crushed, made into flour, made into unleavened bread, and keeping the feast for 7 days. और फिर आपको उस रास्ते में आपको चलना है कि उसके अंदर कोई मैलापन, कोई नापाक चीज, ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए आने वाले 7 दिनों तक। Now, the reason why the Bible tells us to count 50 days from the 16th day is because you have to keep preparing yourself with purity, counting 15 days till the day of Pentecost for the final anointing of God's power and Holy Spirit in your life. अब खुदा का कलाम ऐसे कहता है कि 16वें दिन से 50 दिन तक आपको लगातार आगे बढ़ना है और पाक रखना है और सही तरीके के काम करना है, क्योंकि 50वें दिन को खुदा की जो रूहुल कुद्दस बड़े पैमाने पर उसका जलाल नूर आपके पर आने वाला है, इसलिए आपको अपने आप को तैयार करना है उसके पाक रास्ताबाज में। But that anointing will only come if we are in the process of going through the Passover lamb and keeping the feast in our soul and preparing ourselves day by day, counting in expectation that I will get that anointing on Shavuot. वो खुदा का जलाल, उसका नूर तब आएगा उस पंतीकोस के दिन पर कि आप अपने आप को तैयार करते हुए और ये उम्मीद लेते हैं और आगे बढ़ेंगे कि खुदा का जलाल मुझ पर आएगा, मुझ पर उतरेगा और आप उसके लिए खुदा से मांगते हुए आगे बढ़ोगे, तब होगा। So it is not only a festival to keep and festival to do, but it is also a festival for us to change and transform our lives according to what the Torah is telling us. तो ये केवल एक जुलूस ही नहीं है और एक त्योहार ऐसा नहीं कि हम उसे मनाएं, पर ये ऐसा एक जुलूस, एक त्योहार है कि हम अपने आप को कैसे खुदा के रास्ताबज़ में आगे बढ़ते जाए और उसकी खिदमत में पेश आए। Now, on the night when Yeshua was crucified and captured and taken captive, his disciples were crushed, they were broken, they were crying, and they were all dispersed. अब जिस रात को खुदावन यीशु मसीह को शिकार किया गया, पकड़ा गया, उन्हें मारा पीटा गया, तो उसके जो शागिर्द थे वो भी पूरा चूर चूर हो गए थे, वो पूरे मायूस हो चुके थे, टूट चुके थे। And even his body was completely crushed like a grain of wheat. और यीशु मसीह के शरीर को भी जैसे गेहूं के दाने को कूटा जाता है, तोड़ा जाता है, उसी मुआफिक उसे तोड़ा गया। And then that entire process of his disciples and him going through, preparing day by day, till they reached that 50th day when they were sitting in the top room and the anointing of the Holy Spirit came upon them. जो नजरिया से यीशुआ और उसके शागिर्द गुजरे और सारे दुखों को लेकर और सारे तकलीफों को सहते हुए और फिर वो 50वें दिन पर ऊपरी कोठरी में बैठे उस पंतीकोस के लिए। So normally we celebrate Passover or we celebrate Good Friday as a one-day feast. तो दुनिया के जो मसीह लोग ज्यादा करके जो पंतीकोस का त्योहार वो केवल गुड फ्राइडे के दिन ही मनाते हैं, वो एक दिन का जुलूस होता है। But the Bible does not tell us about one day. It talks to us about 50 days of preparation. लेकिन बाइबल हमें ऐसा नहीं सिखाती, वो हमें कहती है कि 50 दिन तक आपको खुद को तैयार करना चाहिए वहां पहुंचने के लिए। And we have to get up every day in these 50 days and count. Today is the 10th day. Today is the 11th day. Today is the 12th day. In earnest expectation that I reach the 50th day or the 50th level for God's anointing to be on my life.
और सवेरे उठ के हर एक दिन हमें गिनना पड़ेगा कि आज 10वां दिन है, 11वां दिन है, और खुदा से हमें ये दुआ करके हमें उससे आशा लगाए लगेगी कि 50वें दिन तक मैं पहुंच सकूं और खुदाबंद का जलाल, उसका नूर मुझ पर आएगा, उसकी रूहे कदोश मुझ पर बरसेगी। So all these festivals are connected one to another. तो ये सारे त्योहार जो है, जो सारे जुलूस है बाइबल के, वो एक दूसरे के साथ में मिलजुल के चलते हैं। Therefore, we must be very, very careful when we understand and someone asks us, how do we celebrate the feast of the Lord? तो जब हम इन बातों को समझेंगे तो हमें बहुत ध्यान बरतना चाहिए कि जब कोई हमें पूछेगा कि तुम खुदा के जो जुलूस, उनके त्योहार को किस तरह से मनाते हो, तो हमारे पास उस सवाल का जवाब देने के लिए हम तैयार रहना चाहिए। Now, from Pentecost or Shavuot today, we go on to the next festival, which is the festival of blowing of the trumpets. अब शवोत या पंती को जो आज का दिन है, इसके बाद में जो आएगा वो तूरी का त्योहार है, which is the first day of the 7th month. जो 7वें महीने के पहले दिन का होगा। And that is a festival for all the nations. It's not only a Jewish festival. और वो जो टीचर और जी वो प्लीज जुलूस आप सबको म्यूट कर दें। टीचर जी प्लीज सबको म्यूट कर दें। Yeah. और वो जुलूस, वो जो त्योहार है, वो केवल मसीहों के लिए, यहूदियों के लिए नहीं, वो सारे उन्मत्तों के लिए है, सारी दुनिया के लोगों के लिए है। Because the first day of the 7th month is a day when God sits down and he assesses all of creation and he takes account of what's happening in the world. जो 7वें महीने के पहले दिन है, उस वक्त खुदावन सिंहासन पर विराजमान होते हैं और वो दुनिया के सारे देश, सारे उन्मत्तों, सारे इंसानी कौम और सारे वतनों का वो हिसाब किताब लेते हैं। That's why it is also called the day of judgment. इसीलिए उसे कहा गया कि वो एक खुदा का न्याय का दिन है। Now from there, the 10th day after that is the day of atonement. और उसके बाद जो 10वें दिन को तो उसे कहा जाता है कि खुदा के सामने पेश करना, हमें गुनाह की माफी मांगने का दिन, पश्चाताप। That day of atonement of cleaning of the soul comes after the day of judgment. तो वो जो रूह को जो चंगाई देने का दिन है, वो खुदा के न्याय के दिन के बाद में आता है, जो तौबा करने का दिन है। Which means that it's like a judge proclaiming that you are guilty, but after 10 days he gives you the sentence of the quantity of how much he wants to punish you is a different thing. जैसे कि खुदावन एक जज के मुताबिक है कि वो कहता है कि तुम गुनाहगार हो, और फिर वो 10 दिन के बाद में कहता है कि तुम्हारी गुनाह की सजा क्या होगी। So the decree of guilty comes on the first day, and the decree of the punishment comes on the 10th day. तो पहले दिन पर जो खुदा का ऐलान होता है, का हुक्म होता है कि तुम गुनाहगार हो, और 10वें दिन को उस गुनाह की जो ऐलान की जो क्या सजा है, वो खुदा ऐलान करता है। And then on the 15th day of the 7th month, we have the feast of Sukkot or Chag HaAsif, or the festival of ingathering. फेस्टिवल ऑफ Ingathering. इनगैदरिंग। और उसी 7वें दिन के 7वें महीने के 15वें दिन में उसके बाद में त्योहार आता है कि एक साथ इकट्ठे मिलना, यानी इनगैदरिंग। Ingathering, you bring everybody in because the souls have been harvested and gathered in. क्योंकि आप सबको एक साथ इकट्ठा लाते हो, क्योंकि तुम्हारे जो रूह है अब उन्हें साफ किया गया है, तुम एक साथ मिल सकते हो। So the reason why we have Day of Judgment and Atonement after Shavuot is because the souls that have sinned after getting the anointing have a chance of rectifying themselves. तो ये ऐसा क्यों है? क्योंकि शवोत के बाद में जो न्याय का दिन आता है, और क्योंकि जिस रूह ने पाप की है, उन्हें खुदा का जलाल पाने के बाद उन्हें मौका मिलता है कि वो फिर से तौबा करे और खुदा के पास आए।
So in the Old Testament, this was practiced year after year, year after year, and year after year. तो पुराने पुराने करार में ये साल के बाद साल दोहराया गया था और उसके अनुसार चलते थे। But now, since our Lord Yeshua has died and resurrected, this process now should be a one-time process for every soul. अब हमारे जो खुदावन यीशु मसीह उन्होंने अपने प्राण दिए और हमें उनके लहू से खरीदा, इसके लिए अब ये हमें बार बार करने की जरूरत नहीं, पर एक बार जरूर करना चाहिए। But the situation in all our lives is that we always come back to the day of atonement because we are not living perfect lives. लेकिन हमारे जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो ऐसे है कि हम एक सही जीवन नहीं अख्तियार करते, इसके लिए हमें रोज पश्चाताप करना चाहिए। Because we are not living the correct lives, therefore God gave Moses the laws of sin offerings and all the sacrificial system, because we are not keeping this process. क्योंकि हम ये सही पाक तरीके से इन चीजों को अव्वल इन्हें हम हमारे जीवन में इन्हें अमल नहीं करते, इसलिए खुदा ने मूसा को ये सारे जुलूस वगैरह के तौर तरीके दिए। I want you to understand this very clearly. The Passover lamb is not a sin sacrifice. मैं तुम्हें बड़े साफ तरीके से समझाना चाहता हूँ, जो फसह के पर्व का जो मेमना है, जो भेंट चढ़ा जाती है, वो पाप बलि नहीं है। It is God's grace and God providing a lamb to remove the sin and the impurities from this world. ये खुदा की मेहरबानी, खुदा का रहम है हमारे ऊपर, जो हमारे अंदर से वो गंदगी और गलत चीज को साफ करता है उस मेमने के बलि के द्वारा। And we have to maintain that purity because it's been removed by God from us and reach Shavuot for that anointing. This is God's grace. और खुदा रहमत करता है हमारे पर, लेकिन हमें उस रहमत को लेना चाहिए और हमें अपने आप को पाक और सही जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, ताकि शवोत के दिन के बाद में हमें जो खुदा की जो जलाल है वो हमारे पर आ जाए। But everybody is sinning, therefore we have to go and give a sin sacrifice to God. So even in the Torah, in the Old Testament, they went and gave the sin sacrifices because they never kept the process that God gave them. लेकिन हर इंसान पाप करता है और पुराने करार में भी वो पाप करते रहे, इन्हें इसलिए उन्हें वो पाप की बलि आके खुदा के सामने चढ़ानी पड़ी। If it was possible, if everybody listened to the laws that God gave Moses, none of them would be able to give the sin sacrifices for themselves. अगर जो कलाम खुदा ने मूसा को दिए थे, मूसा के शरीफ के अनुसार अगर वो सारे लोग उन बातों पर अमल करते थे, तो किसी को भी ये कुर्बानी देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। And the anointing they would have got on Shavuot would have rectified the world. और जो खुदा का जलाल और जो खुदा का नूर उन पर उतरता था, उस नूर और जलाल को लेकर वो पूरे दुनिया को ठीक कर सकते थे। Now, what happened on Shavuot to the children of Israel in the desert? तो शवोत के समय जो खुदा के जो शागिर्द थे, उन्हें उस वीराने में क्या हुआ? Does anyone know? कोई जानता है? Does anyone know? क्या किसी को पता है? God descended on Mount Sinai on this day. तो आज के दिन पर खुदा उस सिय्योन पर्वत पहाड़ के ऊपर खुद नीचे उतरा है। And he gave the Torah to the children of Israel on the day of Shavuot. और आज का दिन जो शवात का दिन था, उसी दिन पर खुदा ने जो अपने तोरा के जो कलाम थे उसने यहूदियों को दिए। Please
open with me to the book of Exodus chapter 19. तो एक्सोडस की किताब के 19वें अध्याय पे खोलेंगे And we will read verses 1 to 3. और हम 1, 2, 3 कलाम पढ़ेंगे वहां पर। और बनी इसराइल को जिस दिन मुल्क मिस्र से निकले 3 महीने हुए, उसी दिन वो सीना के बियाबान में आए। और जब वो रफीदियम से रवाना होकर सीना के बियाबान में आए तो बियाबान ही में डेरे लगा लिए। सो वहीं पहाड़ के सामने इसराइलियों के डेरे लगे। और मूसा उस पर चढ़कर खुदा के पास गया और खुदावन ने उसे पहाड़ पर से पुकार कर कहा कि तू यकूब के खानदान से यूं कह और बनी इसराइल को ये सुना दे। On the third new moon, after they had left the land of Egypt, that very day they entered the wilderness and they encamped at Mount Sinai. तो चांद के तीसरे महीने में वो पहाड़ पर आ गए और वो सिनाई पर्वत के वहां पर वो पहुंच गए। They left on the 15th day of the first month. So that So is how many days? तो पहले मन के 15वें दिन पर निकल गए, तो अब कितने दिन हो चुके हैं? They left on the 15th of Nisan on the first month. तो निसान जो पहला महीना होता है उसके 15वें दिन में वो निकले थे। And count 50 days from there was the day that God descended on Mount Sinai and gave them the Torah. और अगर वहां से 50वें दिन गिनोगे तो शवात के दिन पर उनको सिनाई पहाड़ के ऊपर खुदावंद ने उन्हें कलाम दिया अपना। That, my friends, is the calculation. You all have to understand that this day is very, very important in the Old Testament and the New Testament also. तो ये जो आंकड़े हैं, ये दिनों का हिसाब किताब है, आपको पुराने कलाम और पुराने नियम और नए नियम में आपको अच्छी तरह समझना चाहिए मेरे प्यारे अजीज दोस्तों। And how and why this day is important in our lives, because for each one of us I explained to you all the process that we need to be in. क्यों और कैसे ये दिन हमारे लिए बहुत ही जरूरी है इन्हें समझना कि जो तौर तरीका था जो खुदा ने उन्हें बताया था वो हमें समझना चाहिए, उन बातों को अमल करना चाहिए। It is not a one-day festival, Good Friday or Passover, and then we come to Pentecost or Shavuot and we celebrate. It's not a one-day festival. It is a process of preparation of your soul. I explained to you. तो एक दिन का जुलूस नहीं है कि एक दिन का त्योहार नहीं हम खुशियां मनाए, पर ये एक जैसे कि गुड फ्राइडे हुआ या पेंटिकॉस्ट हुआ, पर ये एक ऐसा जरिया है जो हम हमारे रूह को हम तैयार करते हैं उस पाक रास्ताबद्ध होने के लिए। Now, on a spiritual level, there are many, many secrets about this, but I cannot share this with you all right now. Maybe later on when we have a certain understanding, a proper understanding of the Torah. और रूह की गहरी बातों की गहराई में और उनके बड़े बड़े भेद को जानने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अब मैं आपसे नहीं बांटूंगा। लेकिन जैसे आप इसमें आप तदबीर होगे, आप आगे बढ़ोगे, तो मैं आपको बांटना शुरू करूंगा। So I just wanted to share this with you all today because it's a very important day in the lives of all of us who believe. तो आज मैं आपके साथ में ये बांटने के लिए मैंने मौका को इस्तेमाल किया क्योंकि ये हमें जानने के लिए विश्वासी जो भाई है और बहुत जरूरी था। Okay, so shalom each one of you all, and I'll meet you all next Sunday. Take care and God bless and good night. Lalato.